for all kind of wild animals which we have rescued, rehabilitated. We are also conserving and doing endangered breeding programs here. So we are getting endangered species and trying to conserve them and breed them so that eventually we can release them back in the wild. So all the animals that we saw, all those are from different zoos in different parts of the world? So, not zoos. All the animals come from circuses. All the animals come from places where they've been abused. And the animals also have come from zoos which don't have conditions or money or finances to keep them. And they've kept them in terrible conditions. So, we've rescued animals. Also, some animals come from the wild because they get hurt in an accident. They're man-eaters, so they're kept in a small cage for no fault of theirs. So, that's why they come. So, what's happening here? So this is one of our labs. So you can see our lab technician. She is currently trying to, she must be looking in the electron microscope for something. So this is a 24/7 lab because you have to always keep on processing data. This lab, it's obviously 9 p.m. so it's after office hours. But this lab is something unique, and this is, I think, one of its kinds in the world. It's the what most. Kind of research do you do over So here? we can do diagnostics. So we can do PCR testing. We can do any other medical testing, including we do a lot of biopsies here. So this is a fully functional lab. So you can see the lab. It's one of the best lab, I would say, in the country for wildlife management, and it works 24/7. What's your big idea here? What So- is it that are you like for example, your mom built an image as a cultural czar, reviving Indian handicrafts, culture, art. Are you trying to do the same with conservation, Anand? My endeavor would be to do something like how my parents have done. They have always supported me, and I think it's their, my mom would be the happiest if I'll be able to do something like what she's done for culture, for wildlife. My aim is that endangered species, see today, every day, some species is becoming extinct. So for our next generation to see them in the forest, captive breeding is very important. More than that, rescuing of animals in need. Like you saw, all the tigers, I showed you the tigers, that arthritis, that paralysis. So there's nothing for them. And these are all God's gifts to nature. So we have to have something to rescue them. So that's why my aim is that how much ever I can do for capacity building for India in terms of wildlife management and wildlife care, and for our veterinarians to learn about wildlife medicine so that India can benefit and our biodiversity. I'm sure you've been to a lot of safaris. So I want 5-6 generations also to benefit. Like how the Honorable Prime Minister reintroduced the cheetah back into the country. तो आपको लगा वो अच्छा आइडिया था चीता को साउथ अफ्रीका से इंडिया लेके आना? देखिए, चीता पहले इंडिया में ही होता था, बट हंटिंग के कारण चीता का यहाँ से भाग गए, मतलब चीता खत्म हो गया क्योंकि उनको हंट किया गया। चीता भारत में बहुत जगह पर पाए जाते थे, पर हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा, और ये एक बहुत बेहतरीन सोच थी कि चीता को वापस इंडिया में लाना, और ये उनका विजन था, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। ये चीता को हम तो भारत में 10-15 वर्ष 20 वर्ष से बात कर रहे हैं कि चीता को वापस लाया जाए। अननेचुरली लाएंगे तो ये सर्वाइव करेंगे नहीं? देखिए, अननेचुरली का तो बात है ही नहीं, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटाट ही था। ये दुर्लभ इसीलिए हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने उनको हंट कर दिया, तो जहाँ चीता पहले था वहीं हमने चीता छोड़ा है, और चीता अभी यहाँ ब्रीड होना चालू किया है। और जब भी आप बाहर गांव से कोई भी जंगली जानवर को नए जगह जाओगे, जब रीइंट्रोडक्शन होता है उसमें मोर्टेलिटी निश्चिंत है, थोड़ा तो मोर्टेलिटी होगा, बट आप ये देखिए कि चीता कितना वेल सेटल होकर ब्रीड हो रहा है वहाँ। आपने कहा कि आप गणेश जी के भक्त हैं जी, तो यहाँ भी एक हमने दगड़ू सेठ महाराज का एक अवतार यहाँ खड़ा किया है, और ये हमारे सब आर्टिशियन जो हमारे महावत है, हमारे केयर टेकर है, ये इन्होंने बनाया है, पूरा पेपर से बना हुआ है। ये पेपर का बना है? जी, पेपर और कापड़, इसके लिए इंडोर रखा हुआ है। ये जो है वो खाली हाथियों का था। ये प्रकार, अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर के लिए हमने ये अस्पताल यहाँ बनाया है, और ये अस्पताल में हमारे पास 6 सर्जरी सेंटर्स, मतलब 6 ऑपरेशन थिएटर, जैसे हम हमारे हॉस्पिटल में कहते हैं, 6 ऑपरेशन थिएटर है, इन पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI है जो खाली
हमारे पास है। पूरे भारत में जंगली जानवर के लिए एमआरआई खाली इस हॉस्पिटल में, पूरे भारत में और कहाँ नहीं है। और कोई इतना इन्वेस्ट भी नहीं करता ना इस तरह की चीज में। जी, और सीटी स्कैन भी हमारे यहाँ तो क्या आप एक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएसआर के पार्ट पे देखते हो कि जी, ये एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट को अलग अलग, रिलायंस फाउंडेशन भी उसमें सीएसआर देती है, बट ट्रस्ट को अलग अलग जगह से सीएसआर आती है। जो जानवर प्रेमी हैं, ट्रस्ट, हम भी, मेरे परिवार भी, माताजी और पिताजी का तो बहुत सपोर्ट रहा है। और यहाँ सीटी स्कैन जो है, एक ही अनोखा हॉस्पिटल है भारत में जहाँ सीटी स्कैन है। क्या मंदिर जाके देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आइए। तो हम सीधा से यहाँ से आपको ऑपरेशन थिएटर दिखा देंगे। तो आप ये ऑपरेशन थिएटर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पूरा कार्ल स्टार्स का पूरा जर्मन मेड ऑपरेशन थिएटर है। रोबोटिक सर्जरीज भी होते हैं यहाँ साथ साथ में हम एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर सकते हैं। यहाँ वेंटिलेटर है, यहाँ गैस एनेस्थीसिया मशीन है, और साथ साथ में हमारे पास यहाँ एनिमल क्रिटिकल केयर मॉनिटर्स भी है। तो हम यहाँ पूरा सर्जरी कर सकते हैं। तो कितनी सर्जरी होती होंगी यहाँ पे? अभी तक हमने यहाँ लगभग 200-250 से ज़्यादा सर्जरीज की है। हम अलग अलग जूस को भी मदद करते हैं, रेस्क्यू सेंटर्स और जो वन विभाग है उनका भी हम बहुत मदद करते हैं। तो जानवर यहाँ आके हम ठीक करके उनको वापस जंगल में छोड़ने का भी प्रयास करते हैं। वन तारा क्यों नाम पड़ा इसका? तो ये वन तारा जो नाम है, ये है जंगल का सितारा। हाँ। तो ये मैंने इसीलिए इसका नाम वन तारा रखा कि ये जंगल का सितारा जैसा ही है। और हम सोचे कि इधर एक जन्नत तो आपने देखा नहीं होगा और मैंने भी जन्नत नहीं देखा, तो जानवरों के लिए हमने यहाँ जन्नत बनाने की कोशिश की। आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आपका चलो एक अस्पताल है, आपके पास जितने जानवर आ गए वो हो गए, लेकिन ये बाकी देखिए ये जो है, ये यहाँ नेशनल पार्क्स तक पहुंचे आनंद, उसके लिए आप क्या करें? यहाँ हम एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। हाँ। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का भाग होगा जहाँ वेद चिकित्सा, जो पशु वेद है, जो और जो पशु चिकित्सा है, उनको यहाँ लाया जाएगा। उनका यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा। जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, और फिर वो पूरे भारत में जाकर नॉलेज स्प्रेड कर पाएंगे। तो हमारा ये है कि ये वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेगा, खाली वाइल्ड लाइफ के लिए यूनिवर्सिटी, और पूरे भारत में हम कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। यस, हम ऑलरेडी काम चालू कर रहे हैं। और हम जैसे अभी 4 दिन में पूरे भारत के जू डायरेक्टर यहाँ आएंगे और उनको दिखाया जाएगा कैसे वो अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करें। तो ये एक केंद्र ऐसे बन रहा है जिससे सबको लाभ होगा। तो ये हमारा सीटी स्कैन है और ये हमारा एमआरआई है। तो सीटी स्कैन के लिए आप रेप्टाइल आईसीयू, तो ये हमारे आईसीयूज होते हैं। यहाँ हम जानवर का इन पेशेंट रखते हैं। भगवान का कृपा है कि अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ये ऐसे हमारा आईसीयू होता है। और आप देख सकते हो कि आपको आईसीयू, तो ये एक जनरल आईसीयू है, वो एक प्राइमेट आईसीयू है, रेप्टाइल आईसीयू। ये तो जैसे वो कोकिलाबेन अस्पताल है वैसा अपने जानवरों के लिए एक तरीके से, वो इंसानों का है या आप जानवरों के लिए? हाँ जी। तो ये जैसे आप देखोगे कि यहाँ हमारा प्राइमेट आईसीयू है। तो यहाँ बंदर भी है, वो है भी बंदर हुआ छोटा सा? हाँ जी। वो आईसीयू में है बंदर? हाँ जी। उसको क्या हुआ? डॉक्टर को पूछना पड़ेगा मुझे, ये आज का पेशेंट है तो मुझे। है डॉक्टर वो? नहीं, वो पैरावेट है, तो डॉक्टर हम बाहर मिल लेंगे उनसे। ऐसा कोई दूसरा अस्पताल है? तो ये रेप्टाइल आईसीयू आप देख सकते हो। हाँ। तो यहाँ हमारे अलग अलग प्रजाति के, जैसे ये बेचारा सांप घायल हो गया था, तो ये बर्मीज पाइथन कहते हैं इसको। तो ये घायल हो गया था और ये अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में, इसका टेम्परेचर भी आप देखोगे तो गर्म जैसा बनाया गया है। तो ये सब हमें मतलब जो थोड़े, ये है पाइथन ही है, पाइथन का प्रजाति है, रेटिकुलेटेड पाइथन कहते हैं ऐसे। और ये सब अलग अलग प्रकार के जानवर है जो आईसीयू में है। आइए, ये हमारा फार्मेसी है। हम आफ्टर आवर्स में इसके लिए फार्मासिस्ट है नहीं, बट ये यहाँ से हमारा सब जगह दवा जाता है, पूरे रेस्क्यू सेंटर का। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है कि इस तरह जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरी मम्मी
मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। पर्टिकुलर हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में हमने सर HN फाउंडेशन रिलायंस हॉस्पिटल मम्मी ने बनाया था, और उसी वो एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल मुंबई में बना है, उससे हमने इंस्पिरेशन लिया। मम्मी ने खुद ईंट खड़ा करके वो हॉस्पिटल बनाया था, और मैं खुद 30-35 जानवरों का अस्पताल घूमने गया। US में गया, UK में गया, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में भी। टाटा ने भी बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल मुंबई में बनाया है पालतू जानवरों के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत आभार कि वो जानवरों के लिए इतना करते हैं। और इस हिसाब से ही मैं सीखा, और सब जगह से देख देख कर थोड़ी प्रेरणा इस जगह से, थोड़ी प्रेरणा उस जगह से, और फिर यहाँ बनाया। और हमने एक टीम भी यहाँ खड़ा किया है, तो वो टीम, सब कुछ टीम वर्क होता है, खुद तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे जो ट्रस्ट के कर्मचारी है और जो ट्रस्ट के अधिकारी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इस शब्द को सफल करने। ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.